تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی، سودا، عمر سے بڑی سے شادی کی، خدیجہ، کم عمر سے شادی کی، باقی ساری بیویاں، خاص طور پہ حضرت عائشہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، بیوہ سے شادی کی خدیجہ، حفصہ، کنواری سے شادی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سے شادی کی خدیجہ، غریب سے شادی کی جویریہ، باندھی ہو کر آئیں، ہمسر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، یہ حفصہ، یہ قریش ہیں، خاندان سے باہر قوم میں شادی کی جویریہ، میمونہ، قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں میرے نبی نے شادی کی۔ اور آپ حیران ہو، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی جن کے ساتھ جانی دشمنی، ابو العاص وہ حضرت زینب، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بنو امیہ۔ تو پہلے حضرت رقیہ کا کیا، پھر ام کلثوم کا کیا، اور علی اپنے گھر کے تھے، خاندان کے تھے، تو ایک فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ۔ اور حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس طرح مرتی، 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں۔ یہ معاشرت کے احکام کو اللہ روزے کے درمیان لے کر آئے، اوپر بھی روزہ ہے، نیچے بھی روزہ ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ معاشرت عبادات کی طرح ہے، عبادت کی طرح ہے۔ معاشرت خوبصورت نہیں ہوگی تو ہمارا دین خوبصورت نہیں ہوگا۔ میں بیوی کو عزت نہیں دوں گا، طنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دیں، بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دیں، اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں اپنا کرتا خود نہیں پھاڑتا، میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا، اپنا نہیں پھاڑوں گا۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے گلہ آیا ہوا ہے، تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا، بیوی خامن کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کرے گی، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے۔ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خامن گرم کبھی بیوی گرم، تو دونوں ہی گرم تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بچہ مجھے آ کے ملا ملتان سے، ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں FSC میں، تو کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے تم کیوں خودکشی؟ کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بددل ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے نبھانا۔ اس خوبصورت رشتے کو عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی مفتی تقی صاحب کے شیخ اور رفیع صاحب، ان کی کتاب میں واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرید کے ہاں گئے تو کھانا بڑا پسند آیا، تو فرمایا کس نے پکایا؟ کہا جی بیگم نے بتایا کہ بیگم آ گئی، تو ان سے فرمایا کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، تو بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، کبھی ایک لفظ اس نے تعریف کا نہیں کیا، 30 سال میں ایک لفظ کبھی نہیں سنا کہ ماشاءاللہ بہت کسی کی تعریف کرے، بیوی خامن کو دیکھے تعریف کرے، خامن بیوی کو دیکھے تعریف کرے، اچھا لباس پہنا ہے تعریف کرو، اچھا لباس پہنا ہے بیوی کے آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خامن کے آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کے رہو۔ ایک تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خاص طور پہ
ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करता हूँ, चूँकि जैसे मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करती है, मैं अपनी बेगम के लिए मेकअप करता हूँ। अब इतने बड़े बड़े पगड़ तुमने बांधे हो, तुम्हारी बीवी वैसे ही डर जाएगी। लंबे लंबे चोगे वो जो मौलाना अब्दुल गफूर साहब के शागिर्द हैं, वो देख के लगता है जिन्न आ रहे हैं। इस्लाम को इस तरह खूबसूरत करके पेश करो कि देखने वालों को कशिश महसूस हो, देखने वालों का बोल ऐसा हो। लिबास दो काम करता है, एक खूबसूरत बनाता है, एक ऐब छुपाता है। यही काम अपनी बीवी के लिए करो, उसके लिए ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ, उसकी कमियां छुपाओ। वो खामिद के लिए करे तो उसकी कमियों को छुपाए, उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए। तब ये सारा कुछ लफ्ज़ लिबास है। तीसरा दिन हो चुका ना आपको लिबास 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 कि ये बहुत अहम मज़मून है। अब सब अब फारिग होने वाले वक्त के ज़्यादा करीब हो चुके हो, इब्तदाई सालों से आगे इंतहाई सालों में आ गए। अब सबकी बॉसों की शादी हो चुकी, बॉसों की इंशाल्लाह सबकी हो जाएगी। तो शौक सलूक के बगैर कोई घर आबाद नहीं रह सकता, अच्छे अखलाक के बगैर कोई घर आबाद नहीं रह सकता। फिर अल्लाह ताला ने तशबीह दी है, निसाउकुम हर्फुल लकुम फातू हर्फकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है। क्या तशबीह है खूबसूरत दूसरी, वहाँ लिबास, यहाँ खेती। मेरा जमींदार घराने से ताल्लुक है, लिहाजा बचपन से किसी नहीं जिसमें गंदी झाड़ियाँ ना पैदा होती। दुनिया भर में फिर के देख लिया, बड़े बड़े फार्म देख लिए, कोई खेती ऐसी नहीं है जिसमें गंदी झाड़ी ना पैदा होती हो। कोई खामिद बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें ऊंच नीच ना होती। हम फसल को बचाते हैं और गंदी झाड़ियों को निकालते हैं, और गंदी झाड़ियां खुद पैदा होती हैं और फसल को पैदा करना पड़ता है। बद अखलाकी खुद आएगी, अखलाक को बनाना पड़ेगा। गुस्सा खुद आएगा, ज़ब्त को बनाना पड़ेगा। ज़बान तेज खुद होगी, उसे ठंडा करना पड़ेगा। तबीयत में नफरत पैदा होगी, उसे मोहब्बत में बदल। ये सब गंदी झाड़ियां हैं। खामिद और बीवी खेती से तशबीह है, तो जमीन क्या है? दिल है। और गंदी झाड़ियां क्या हैं? ताने, गोलियां, नफरत, गुस्से, मार, पिटाई, कभी खामिद की तरफ से, कभी लड़की वालों की तरफ से, कभी लड़के वालों की तरफ से, कभी ससुराल की तरफ से, कभी सास ससुर की तरफ से, कभी भाई बहनों की तरफ से। एक बच्चा बता रहा था कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता तो मेरे चाचा भी आके मारना शुरू कर। इन कनबख्तों का उसके साथ कोई रिश्ता ही कोई नहीं। कहा वो मेरी माँ को मारता मेरा बाप, तो मेरे चाचा भी आके उस साथ ही अपने भाई के मेरी माँ को मारना शुरू कर। यही की कहानी सुना। तो गंदी झाड़ियों से पाक कोई फसल नहीं हो सकती। उन्हें मारने के लिए अलग दवाएं हैं, अलग मेहनत है, अलग कोशिश है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फसल की हिफाजत है और गंदी झाड़ियों को निकालना है, यहाँ तक कि फसल परवान चढ़ जाती है। इसी तरह मेरे बच्चों, ये गुस्सा, ये नफरत, ये बुग़्ज़, ये आपस की अदावत, ये वो गंदी झाड़ियाँ हैं, इन्हें निकालना पड़ेगा। ये ज़मीन से हम बने हैं, हमारे अंदर गंदगी खुद जन्म लेती है, सफाई को लाना पड़ता है। बुराई खुद जन्म लेती है, नेकी को लाना पड़ता है। जैसे कपास को उगाना पड़ता है और गंदी झाड़ी को मारना पड़ता है। हम मिट्टी से बने हैं। मिट्टी की खासियत है कि इसमें गंदगी, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फजूर पहले जिक्र किया, तक़वा बाद में जिक्र किया। मैं इससे ये इस्तिंबात करता हूँ कि हमारे अंदर बुराई खुद आएगी, नेकी को लाना पड़ेगा। झूठ बोलना खुद आएगा, सच्चाई को लाना पड़ेगा। बुखल खुद आएगा, सखावत को लाना पड़ेगा।
हिर्स व हवस खुद आएगा, ईसार को लाना पड़ेगा, नफरत खुद आएगी, मोहब्बत को लाना पड़ेगा, इंतकाम खुद उठेगा, माफ़ करने को लाना पड़ेगा। ये ज़िंदगी भर की ज़राअत की मेहनत है। जाओ खेतों में जाके देखो कि ज़मींदार कैसे मिट्टी में मिट्टी हो रहा है, वो किस तरह अपनी फसल को औलाद की तरह परवान चढ़ा रहा है, और किस तरह वो उसमें से गंदी झाड़ियों को आराम से निकाल रहा है कि पौधा ना हिल जाए। पौधा, मैं हाथों से 15-15 एकड़ के प्लॉट अपने हाथों से झाड़ियाँ खींचता था, वो रंबे खुरपी से नहीं कि कहीं कपास का पौधा मुतासर ना हो जाए। मैं इस तशबीह को जो समझा हूँ, अव्वल तो तुम्हें किसी तफसीर में ये नहीं मिलेगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तो उसको ज़राअत से समझ के तुम्हें बता रहा हूँ, वरना हर एक ने वो एक मखसूस माने में इसको इस्तेमाल किया। फातु हरसकुम अन्ना शि'तुम, उसके बारे में इकबाल और इदबार में इसको इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें अल्लाह ताला ये भी बता रहा है कि खेती को कैसे पालना और कैसे परवान चढ़ना। सबसे पहले उसी को जब वो लग रही होती है तो भागम भाग, जब तक उसका पूरा फल घर नहीं आता ज़मींदार चैन से नहीं बैठता। तो जब तक ईमान पे ख़ात्मा नहीं हो जाता, इस रिश्ते की हिफाजत, इसको पानी देना, इसको खाद देना, इसमें से गंदी झाड़ियों को निकालना, गुस्से को, हसद को, बुग़्ज़ को, लड़ाइयों को, जब अल्लाह तुम्हारे घर बना दे तो कानों में डांट डाल देना, किसी की बुराई न सुनो, ख़ास तौर पर अपनी बीवी की बुराई न सुनो, किसी की न सुनो लेकिन बीवी की न सुनो। और बीवियों से कहता हूँ कि अपने खामिन की बुराई न सुनो, और बीवियों पर शक मत करो। शक ने कितने घर बर्बाद कर दिए, बिगाड़ के रख दिए, तबाह करके रख दिए। एतमाद करो। निकाह का एक मतलब है औरत पर मर्द का एतमाद करना। अब ये मोबाइल का ज़माना है, बीवियाँ खामदों को मोबाइल ढूंढ रही होती हैं और खामिद बीवियों को मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं कि कितने मैसेज कितना कितों मैसेज आया। ये ऐसी बदतमीज़ी, बदअखलाकी, ये ज़िंदगी के माथे पर बहुत गंदा बदनुमा ताक़। मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी के सुन, हज़रत आयशा पे तोहमत लगी, कोई ऐसी नहीं लगी, बहुत बड़ी हिकमत थी पीछे, और सारा माहौल मुतासर हो चुका है, वही बंद है, और मेरे नबी कह रहे हैं आयशा कोई गलती हुई है तो तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ कर दे। ज़रा अपने आप को यहाँ बैठा, खुद अपने आप को बिठा के सोचो। मैं कुर्बान जाऊँ, क्या ज़र्फ़ है मेरे नबी का, आयशा कोई गलती हुई है तो तौबा कर, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये नहीं कि गलती बता मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ, अभी तेरा सर उतारता हूँ। कितनी बच्चियां शक की बुनियाद पर ज़बह कर दी, लड़के शादियां करके ज़िना करते हैं, और बच्ची से पर शक पड़ जाए तो उसे जान से मार देते। लड़का गुनाह करे, लड़की करे, दोनों ही बशर हैं, दोनों ही इंसान हैं, इससे भी खता हो सकती है, इससे भी हो सकती है। बेटी से खता हो जाए तो गैरत पे जद पड़ गई, लिहाजा इसे ज़बह कर, और बेटा शादियां करके भी मुंह काले करता रहे तो कोई नहीं जी, छोड़ चिक्कर। मेरे माहौल के आग है जो भड़क रही है, किसी से भी खता हो सकती है, बशर है, ये भी बशर है, ये भी बशर है। और मेरे नबी में कुर्बान जाऊं, वाह या रसूल, वाह या रसूल, आयशा अगर कोई कमी हुई है तो मौला ने जिब्रील को था, कशाफ वाले क्या हैं जारुल्लाह, वो कहते हैं कि पूरे कुरान में अल्लाह इतना गज़बनाक हो के नहीं बोला जितना इन 11 आयात में गज़बनाक हो के बोला। इतना कुफ्र के खिलाफ भी अल्लाह गुस्से में नहीं बोला जितना इनमें बोला है। अब शेख रमज़ी जैसे ढूंढें कि वो गुस्से वाला इजहार क्या है, मैंने तो खाली पढ़ा है, तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश भी की कि भाई वो क्या चीज़ है जो यहाँ है और कुफार फ़िरौन के लिए भी नहीं, हामान शद्दाद के लिए भी नहीं, जो तहमत लगाने वालों के खिलाफ अल्लाह ताला ने गैज़ व ग़ज़ब के साथ बात की। तुम्हारी इससे ज़्यादा मैं घर की मिसाल और तुम्हें क्या पेश करूँ। आयशा अगर कोई हुआ है तो
مبارک اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دیا۔ ام رومان کہنے لگی اٹھو لگا رسول کا شکر ادا کرو گا؟ نہیں، اس کا شکر ادا کریں گی جو میری گواہی دینے آئے، میری گواہی دینے آئے۔ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا پوری پر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو،